friends, as all of you opt science stream in 11th standard. So first of all, welcome to the world of science. In lower classes already you learned about the basic concepts of sciences, but difference is here you have to learn each and every subject separately, like physics, chemistry, biology. Okay, and I am making video for the physics. So before starting the physics, let me explain some basic things about the science. Look at here, there are two types of science, physical science and biological science. Biological science is the science which deals with the living things. In biological science, botany, zoology, so many other sciences are included. And our focus mainly is on physical science. Physical science is the science which deals with the non-living things. Non-living things means like bus, truck, any object which is in motion, planets, satellites, so many things. Okay. So when we deal with this type of objects, non-living objects, and we observe it, we try to observe its phenomena, then that will become part of physical science. In physical science, there are physics, chemistry, astronomy, so many other sciences. Our focus mainly is only on physics. So today I am going to start to teach you physics. Now let me explain first what is physics, definition of physics. Physics is the branch of science that deals with the study of nature and natural phenomena. Means in simple language, physics deals with nature and natural phenomena. Nature and natural phenomena means अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो how can I stand means खड़े कैसे रह सकते हो. Satellites revolving around the planet. तो सैटेलाइट्स कैसे प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर सकते हैं. ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. ग्रेविटेशनल फोर्स इज दैट यू लर्न इन 9th स्टैंडर्ड की इफ आई ड्रॉप एनी ऑब्जेक्ट देन इट मूव टुवर्ड्स द अर्थ ओनली. तो वो क्यों होता है ऐसा, हम कोई ड्रॉप करें तो अर्थ की ओर ही क्यों जाता है. फ्लड, अर्थक्वेक, सो मेनी नेचुरल फिनोमेना आते हैं. So physics deals with the study of nature and nature phenomena. In physics also there are number of branches. First one is mechanics, second is thermodynamics, third optics, electromagnetism, quantum mechanics and so many more. In 11th you will be learn only two branch of physics, that is mechanics and thermodynamics. In 12th you will be learn all this 3 times. There are so many other branches, but your interest is only in these 5 branches, so I am discussing that. Mechanics is the branch which deals with the motion of object. कोई object motion कर रहा है, object motion कर रहा है means कोई object यहाँ पे है, वो यहाँ से ये पोजीशन A से पोजीशन B पे गया, कितने टाइम पे यहाँ पे गया, कौन सी स्पीड से गया, कब वहाँ पे पहुँचेगा, उस टाइम वो वहाँ पे पहुँचा तब उसकी स्पीड क्या थी, उसका एक्सेलरेशन क्या था, उस पर कोई फोर्स लगा है तो फोर्स क्या है, वो सब. सो ऑल दिस विल बी इंक्लूडिंग मैकेनिक्स. कोई ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है तो रोटेट कैसे हो रहा है, कौन से फोर्स से रोटेट हो रहा है, कितनी स्पीड से रोटेट हो रहा है, ऑल दिस विल बी इंक्लूडिंग मैकेनिक्स. Thermodynamics deals with the heat and temperature. That will be learned in detail afterwards. Thermodynamics की effect. All this branch will be learning 12th, so I'm not discussing now. Little bit you will learn in 10th standard. Optics deals with the light. Electromagnetism also you learned in 10th standard. Electricity and magnetism. उसका advance you will be learned here in advance. Quantum mechanics deals with the particles. This 3 you will be learning in 12th. So now in 11th you are having first one is mechanics and afterwards thermodynamics. So before starting mechanics means you have to
डील विद द ऑब्जेक्ट कि ऑब्जेक्ट कौन सी स्पीड से मूव हो रहा है, कितना डिस्प्लेस हुआ उसका, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, स्पीड, वेलोसिटी, एवरीथिंग। तो उससे पहले अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रही हूँ कि वो यहाँ से यहाँ मूव हुआ, तो वो कितना मूव हुआ, तो मुझे ये मेजर करना पड़ेगा ना कि यहाँ से यहाँ कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, कौन सी स्पीड से गया, तो मुझे स्पीड भी मेजर करनी पड़ेगी। अगर ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ट्रैवल्स 10 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे जो 10 सेंटीमीटर लिख रही हूँ, सेंटीमीटर, 10 क्या दिख रहा है मैग्नीट्यूड, एंड सेंटीमीटर क्या दिखा रहा है, यूनिट्स। तो मुझे ये मैकेनिक्स ब्रांच पढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स वो उसके साथ ऑब्जेक्ट के साथ डील करने के लिए पहले मुझे क्या सीखना पड़ेगा कि हाउ कैन आई मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। मैं कैसे मेजर कर सकती हूँ कुछ भी, लाइक स्पीड मेजर करनी है, एक्सीलरेशन मेजर करना है। तो फॉर ऑल दिस थिंग्स you need to know how to measure any physical quantity and which are the units for different physical quantities. So before starting mechanics means motion, first let me explain units and measurement. So today I am going to start the chapter 2, that is units and measurements, because without understanding this you are unable to learn this chapter. First of all, I am going to explain some basic terms. First one is physical quantity. Physical quantity are those quantities which can be measured directly or indirectly. Directly or indirectly means suppose यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है A, वो यहाँ से यहाँ तक गया B तक, और मुझे ये डिस्टेंस मेजर करना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। दिस इज द डिस्टेंस x सपोज, देन आई कैन मेजर दिस बाय यूजिंग स्केल। मैं स्केल यूज करके डिस्टेंस मेजर कर सकती हूँ, या डिपेंड ऑन डिस्टेंस। सपोज आई वांट टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर हाउस, देन ऑल्सो वी कैन मेजर, देयर इज वन अनदर स्केल बाय विच वी कैन मेजर इट। तो वो मेजरमेंट हमने डायरेक्टली किया कोई डिवाइस यूज करके। पर अगर मुझे डिस्टेंस मेजर करना है, सपोज दिस इज सन एंड दिस इज द अर्थ, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इफ आई नीड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, तो सन एंड अर्थ के बीच में या अर्थ और मार्स के बीच का डिस्टेंस, कोई भी दो प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस मुझे मेजर करना है, तो डायरेक्टली बाय एनी डिवाइस तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई ऐसा मीटर स्केल हमारे पास नहीं है कि हम डायरेक्टली वो मीटर स्केल से, इतना बड़ा मीटर स्केल नहीं कि हम डायरेक्टली वो मेज़र कर सकें। मुझे अर्थ का मास मेज़र करना है, तो ऐसा कोई वेइंग मशीन नहीं है जिस पे मैं अर्थ रख के उसका मास मेज़र कर सकूं। तो ऐसे केसेस में मुझे इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करनी पड़ती है। तो बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है which we can measure directly also or indirectly also. So in this chapter you will be learn afterwards कि कैसे directly measure कर सकते हैं, indirectly भी, okay? But there are basically two types of physical quantities. First one is fundamental physical quantity and second one is derived physical quantity. Fundamental physical quantity means the basic physical quantities which is not depend on any other physical quantities like length, mass, time. मुझे लेंथ मेजर कर रही हूँ मैं कुछ, और कोई ये सपोज ये मार्कर पेन है, उसकी मुझे लेंथ मेजर करनी है, तो लेंथ इज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो लेंथ कैन कम इन व्हाट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। Derived physical quantity means which is depend on another physical quantity which is based on any other physical quantity. Suppose मैं मुझे स्पीड मेजर करना है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हम किससे मेजर करते हैं, डिस्टेंस मीन्स वी आर मेजरिंग लेंथ और टाइम। तो स्पीड किस पे डिपेंड है, लेंथ पे एंड टाइम पे। तो स्पीड इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।
लेंथ मेजर करने के लिए मुझे कोई और फिजिकल क्वांटिटी मेजर नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ मुझे लेंथ ही मेजर करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो गई, बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बट विच दिस डिराइव्ड क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन अनदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मुझे स्पीड मेजर करने के लिए पहले लेंथ मेजर करना पड़ेगा, टाइम भी मेजर करना पड़ेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन अदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सपोज मुझे फोर्स मेजर करना है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज डिपेंड ऑन मास ऑल्सो है, एक्सेलरेशन ऑल्सो। एक्सेलरेशन है तो क्या है, स्पीड अपॉन टाइम, और यू कैन से वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसमें भी हमें क्या मेजर करना पड़ेगा, कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी पड़ेगी, और यू कैन से वेलोसिटी अपॉन टाइम डिग्री। तो इन शॉर्ट, जो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है उसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, विच इज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। नाउ अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको मेजर करते हम फंडामेंटल यूनिट से, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको मेजर करते हम डिराइव्ड यूनिट से। तो लेट मी एक्सप्लेन यूनिट्स नाउ। Now suppose, as I explained, physical quantity, fundamental and derived physical quantity. Suppose ये एक कार है, this is car C1 which moves from this point to this point C2. फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी मुझे ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए मुझे कौन सी क्वांटिटी मेजर करनी पड़ेगी, लेंथ। मैंने लेंथ मेजर की, पर मैं क्या लिखूंगी, लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मीटर है, 10 किलोमीटर है, क्या है। अगर कोई बोलेगा कि ये 10 सेंटीमीटर है, कोई बोलेगा ये 10 मीटर है, कोई बोलेगा ये 10 किलोमीटर है, तो सब केसेस में क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो कोई एक स्टैंडर्ड हमें रेफरेंस चाहिए जिससे हम इसको बोल सकते कि नहीं ये इतना ही है, और ये स्टैंडर्ड रेफरेंस एट ईच एंड एवरी प्लेस सेम होना चाहिए। तो वी आर यूजिंग स्केल, तो हम स्केल से क्या मेजर करते हैं कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, तो उससे हमें पता चल जाएगा। पर जो हम यूज़ करते हैं कि ये सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, वो क्या है, ये सब क्या है, दिस आर द यूनिट्स। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट्स। जो हम रेफरेंस यूज़ करते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए, जो रेफरेंस यूज़ करते हैं उसको यूनिट्स बोलते हैं। सपोज मेरे पास ये एक सैंड बैग है, तो ये सैंड बैग से मैं मेज़र कर रही हूँ कोई भी ऑब्जेक्ट, तो अगर ये सैंड बैग से मैं मेज़र करूँगी तो इसके इक्विवेलेंट में कोई एक चीज़ आपको दे रही हूँ, कोई ऑब्जेक्ट दे रही है कुछ भी, तो इसका मास इतना होगा, उतना ही उसका मास होगा। तो मैंने इसको रेफरेंस लिया कि इसका जितना मास है उतना ही मास का ऑब्जेक्ट में आपको दे रही हूँ, ले रही हूँ, जो भी है। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि तब उस टाइम वेइंग मशीन्स नहीं थे, ये जो वेट्स जो 1 kg 2 kg ये सब है वो सब भी नहीं था। तो उस टाइम ऐसे रेफरेंस लेते थे रेंडमली कि किसी के पास ये इतना है तो उसके इक्विवेलेंट दूसरा कोई ऑब्जेक्ट दे दिया। पर उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि सबका रेफरेंस डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो कंपेयर कैसे करें। तो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होना चाहिए जो ईच एंड एवरी प्लेस पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक स्टूडेंट है सपोज, और ये एक दूसरा स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी। तो ये स्टूडेंट कोई थर्ड स्टूडेंट है, दैट इज सी। ये 3 स्टूडेंट्स हैं। तो इफ आई वांट टू चेक कि कौन सा स्टूडेंट टॉलर है, कौन सा शॉर्टर है, तो मैं बोलूँगी कि बी इज टॉलर, B is taller than A also and B is taller than C also. But if I say C is taller,
तो सी टॉलर कैसे हुआ, उसके कंपेरेटिवली तो बी टॉलर है, तो मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा ना कि सी इज टॉलर देन ए। तो इसके रेफरेंस में ये टॉलर है, इसके रेफरेंस में नहीं है। ओके, सपोज मैं बोलूँ कि बी सी इज शॉर्टर, तो सी इज शॉर्टर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, बी, विथ रेफरेंस टू बी, बट सी इज टॉलर देन ए। तो ऑलवेज कोई भी मेजरमेंट होता है वो कंपेयर करना होता है, तो कंपैरेटिवली कोई दूसरे ऑब्जेक्ट्स हम कंपेयर करेंगे, कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस लेंगे हम, जिसके रेफरेंस में हम बोलेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी इतनी है, ये फिजिकल क्वांटिटी इतनी है। तो अगर मैं लेंथ मेजर कर रही हूँ, तो लेंथ मेजर करने के लिए मेरे पास एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है, ऐसा स्केल हम यूज करते हैं ना जिसमें सेंटीमीटर ऐसा होता है यूनिट, तो हम क्या यूज करते हैं, ये स्केल यूज करते हैं, उसमें पर्टिकुलर डिसाइडेड है कि इतना डिस्टेंस क्या है, 1 सेंटीमीटर है या हाफ सेंटीमीटर। सपोज ये 0 है, ये 1 है, तो इतने से इतना डिस्टेंस क्या है, 1 सेंटीमीटर। मीन्स एक स्टैंडर्ड रेफरेंस ही है, कहीं पे भी आप जाओ वर्ल्ड में, तो ये जो लेंथ होगी, इतनी लेंथ, इतना, वो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो मैं जब ये लेंथ मेजर करूँगी, तो अगर मैं बोलूँगी कि ये 10 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स इट इज ट्रू एट ईच एंड एवरी प्लेस। तो एक रेफरेंस चाहिए, पर रेफरेंस कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेफरेंस लीजिए। तो यूनिट, इट इज द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा जो स्टैंडर्ड रेफरेंस हम ले रहे हैं जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट्स। फॉर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी वी आर यूजिंग डिफरेंट यूनिट्स। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो यूनिट्स यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। एंड जो डिराइव क्वांटिटी के लिए जो यूनिट्स यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिराइव यूनिट्स। लाइक लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स, सपोज मीटर। टाइम मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेकेंड्स। मास मेजर करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम, किलोग्राम। तो ये मास, लेंथ, मास, टाइम, वो सब क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट्स यूज किए उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, स्पीड, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हम किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोअर क्लासेस में ये सब यूज कर चुके हो, पर अभी आपको सिर्फ उसका बेसिक डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि क्या है फंडामेंटल यूनिट्स, क्या है डिराइव्ड यूनिट्स। स्पीड, स्पीड इज ऑल्सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो उसके लिए जो यूनिट यूज होता है मीटर पर सेकंड, वो क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट। ये फोर्स का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, उसके लिए जो यूनिट यूज किया उसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। ये डिराइव्ड यूनिट्स देखो कि मीटर को हम सिंबल क्या यूज करते हैं, एम, सेकंड्स का सिंबल एस, किलोग्राम का केजी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन में क्या यूज किया हमने, मीटर भी यूज किया, सेकंड भी यूज किया, स्पीड में भी मीटर यूज किया। मीन्स जो डिराइव्ड यूनिट्स आर डिराइव्ड बेस्ड ऑन व्हाट, फंडामेंटल यूनिट्स। वो फंडामेंटल यूनिट्स यूज करके जो बन रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। देयर आर बेसिकली 7 फंडामेंटल यूनिट्स, और वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है उसको यूज करके हम बाकी सब यूनिट्स बना सकते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, then in next lecture I will explain about this basic 7 fundamental units and how can we use it to measure any object. Thank you for watching video.